Yes, I started recording. Good morning, everybody again. एक दरखास्त थी कि ये जब रहता है चालू मेडिटेशन, वो सब लोग आप थोड़ा म्यूट रखें अपना, मतलब क्या आवाज आ रहा था बीच में, वो तो थोड़ा म्यूट रखे तो अच्छा रहेगा. Let's see. Can you see the screen? नहीं अभी आया. यस, मुझे हमने कौन सा पेज पे खत्म किया था? We started with 74, right? 74. No, chapter 4. Chapter 4. And what is the page? 82 or 83? नहीं, chapter 1 है start. Sorry, I'm sorry. 84, 85 रहेगा. Chapter से हटना, chapter कर दो ना. Chapter 4. 4 we need to start. Yeah, chapter 4 need to start. No start. एक काम करो, go to page 9 और chapter 4 पे क्लिक करो. हाँ, उधर जाके आप डायरेक्ट कंटेंट में जाओगे ना, कंटेंट में इमीडिएटली हो जाएगा. Page number 9. Next. Go to page 4. The power and creation. The power and creation. Every moment of your life is infinitely creative, and the universe is endlessly bountiful. Just Bountiful. put a clear enough request, and everything your heart desires Must come to you. 1948 author. Shakti Goen, author. Why? तो हमारे every moment of life is infinitely creative, and the universe is endlessly bountiful. Just put forth a clear enough request, and everything your heart desires must come to you. Beautiful. पूरा moment, every moment of life is infinitely creative. पूरा दिन आप creative होते हो. If you do it, you are always creative. सबसे बड़ी यूनिवर्स इज बाउंटीफुल. बहुत है यूनिवर्स के पास, कोई कमी नहीं है. आप अपनी इच्छा आगे रखो, दिल से रखो, ask for it, and your desire heart will come to you. Okay, that's good. Great. You started with a great saying. In this next chapters, you will learn how easy it is to harness the force of love for money, health, career, business, and relationships. With this knowledge, you will be able to change your life whatever you want. Bring a specific desire to you. Follow the simple steps of creation process. Whether it's bringing something you want or changing something you don't want, process is always the same. प्रोसेस हमेशा सेम रहता है. आपको जो भी डिजायर होगा, पर ये चैप्टर आपको सिखाएगा हाउ टू हार्नेस दिस पावर इन योर करियर, इन योर रिलेशनशिप, इन योर बिजनेस. सब बात में ये काम आएगा. It will teach you how to harness this power and get what you want. The process will be same for everything. Yes. The creation process. Imagine it, feel it, receive it. इतना इजी. इमेजिन इट, फील इट एंड रिसीव इट. क्रिएशन प्रोसेस क्या है? इमेजिन करना है, उसको फील करना है, तो अपनी इमेजिन क्या है, और आप तैयार होना है लेने के लिए. You should be ready for that. Yes. Now what? Imagine. Use your mind to focus on and imagine what you desire. Imagine yourself being with your desire. Imagine yourself doing things with your desire. Imagine yourself having your desire. मतलब आप जो भी सोचते हो, when you visualize, you have to imagine कि अब सब कुछ आपको मिल गया है and you are having it. Imagine yourself with your desire. मतलब आपका जो desire है आप हो already. आप जो करना चाहते हो कर रहे हो already. So you have to bring that desire in the present moment. Okay. Yes, Abhay. Number 2, feel. At the same time you imagine, you must feel love for what you are imagining. You must imagine and feel being with your desire. You must imagine and feel doing things with your desire. You must imagine and feel having your desire. Your imagination
connects you to what you want. Your desire and feelings of love create the magnetism, the magnetic power, drawing your desire to you. This completes your part in the creation process. हाँ, ये क्रिएशन प्रोसेस में फीलिंग का बहुत महत्व है. इफ यू वांट अ कार, समझो आपने सोचा कि मर्सिडीज गाड़ी लेनी है, BMW गाड़ी लेनी है, तो आपको शोरूम में जाना है, गाड़ी को फील करना है, उसमें बैठ के देखना है. फिर घर पे भी आपको सोचना है कि आप वो गाड़ी में बैठे हो, कार में बैठे हो, स्टीयरिंग हाथ में है, एंड यू आर स्टार्टिंग नाउ, इंजन का आवाज आ रहा है, आप एक्सीलरेट कर रहे हो. एवरीथिंग यू हैव टू ड्रीम, यू हैव टू क्रिएट इन योर माइंड. यू मस्ट इमेजिन एंड फील बीइंग विद योर डिजायर. आपको उसके साथ रहना है, वो डिजायर को आपको जीना है अभी इसी मोमेंट. बोलते इमेजिन इट कनेक्ट, आपको जो चाहिए उससे कनेक्ट करेगा, और उसमें फीलिंग्स आ गई तो वो मैग्नेटिक पावर बन जाएगा. इट विल ड्रॉ समथिंग दैट यू वांट टू यू. जो आपको चाहिए वो आपको लेके आएगा, सामने आपको प्रस्तुत करेगा. इट विल मैनिफेस्ट. यस. Third, receive. The force of love will work through the visible and invisible forces of nature to bring what you desire to. It will use circumstances, events, and people to give what you love to you. Whatever you desire, you must want it with all your heart. Desire is love. And unless you have a burning desire in your heart, you will not have enough power to harness the force. You must really desire what you want. As an athlete, desire to play a sport, a dancer desire to dance, and a painter desire to paint. You must desire what you want with all your heart because desire is feeling of love and you must give love to receive what you love. एक मिनट भाई, थोड़ा ऊपर ऊपर बेटा. पहले क्या बोला उन्होंने, इट विल कम थ्रू विजिबल और इनविजिबल फोर्सेस. जरूरी नहीं कि आपको सब दिखता होगा. इट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर. आपको दिखता नहीं पर आपका अंदर वो फोर्स आ रहा है लव का. तो कोई भी सर्कमस्टेंस हो, कुछ भी हो, आप कहीं भी हो, आपकी जो भी डिजायर है उसके लिए आपको प्यार होना चाहिए. यू शुड लव दैट. ये नहीं कि अबे भाई का गाड़ी इसलिए मुझे गाड़ी चाहिए क्योंकि मुझे जलन है, वो नहीं होना चाहिए. आई वॉन्ट इट फॉर सम रीजन. इसलिए हम लोग बोलते हैं जब भी आप ड्रीम लिखो, राइट वाई. इट शुडंट बी अ स्टोलन ड्रीम. इट शुडंट बी अ बोरोड ड्रीम. आपकी खुद की डिजायर एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए. वो बर्निंग कब होती है? जब वो ड्रीम्स आपके होते हैं. सो आप जितना भी उस डिजायर को चाहोगे, पाना चाहोगे, करना चाहोगे, जो भी है, जितनी चाहत बढ़ेगी उतना वो आपसे करीब आता रहेगा. इतना आप जल्दी इसको मैग्नेटाइज करोगे, विल फोर्स इट टू कम टू यू. इट विल मैनिफेस्ट इन योर लाइफ. मतलब ये एक सॉर्ट ऑफ मतलब गजब हो जाता है, अमेजिंग चीज है ये सब है. लेट्स गो. So love is very important. Love for the thing, love for the desire, anything. Yes, sir. Whatever you want to be in your life, whatever you want to do in your life, whatever you want to have in your life, the creation process is the same. Give love to receive love. Imagine it, feel it, and receive it. ये सब चीज के लिए एक ही प्रोसेस है, बराबर. जो आपका डिजायर वो बदल सकता है, बाकी प्रोसेस सेम ही रहेगा. लव इट, जस्ट गिव लव. जितना प्यार दोगे इतना प्यार मिलेगा. तो इमेजिन इट, फील इट एंड रिसीव इट, जो हमने समझाया पहले. दिस इज द 3 पार्ट. ये 3 इंस्ट्रूमेंट है क्रिएशन का, 3 मेन इंग्रेडिएंट ऑफ क्रिएशन. यस. When using the creation process, imagine and feel that you have what you want already and never deviate from the state of being. Why? Because the law of attraction copies whatever you give, and so you must imagine and feel having it now. If you So you want have to to, lose, नहीं, आप एक सोचो, उसने क्या लिखा है, you never deviate from the state of being. Why? Because the law of attraction copies whatever you give. हमको बीइंग में आना है. हम लोग क्या सोचते हैं रोज, हम लोग कि हम करेंगे, पाएंगे और बनेंगे,
पर इसका डायरेक्ट उल्टा है, यू हैव टू बी। आपको डॉक्टर बनना है तो आपको अभी से दिमाग में डॉक्टर की छवि बिठानी है, एंड यू टू सी योरसेल्फ एज ए डॉक्टर। फिर डॉक्टर बाद में हैविंग आता है, बीइंग, डूइंग, देन यू सॉरी डूइंग, आई एम सॉरी, बीइंग के बाद डूइंग आता है कि आप सेवा कर रहे हो, आप डॉक्टरी कर रहे हो, किसी को तपास रहे हो, ये दिमाग में सोचना है। उसके बाद यू स्टार्ट, यू नो, इसकी एग्जाम दो, डॉक्टर बनने जाओ। पहले तो आपको खुद बनना है वो चीज, कहां पर? अपने विचारों में। बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट विद अ मैप। आपको बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो पहले उसका पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। एवरी चीज मतलब एक एक कमरे का, कमरा कैसा होगा, दरवाजा कैसा होगा, पूरी बिल्डिंग कैसे होगी, उसका ढांचा कैसे होगा, उसके पिलर्स कैसे होंगे, उसका फाउंडेशन कैसा होगा, कितना स्टील जाएगा, एवरीथिंग इज ऑन पेपर फर्स्ट। पहले बिल्डिंग पेपर पे और दिमाग में बनती है, फिर जाके हकीकत में बनती है। इसी तरह हमारे जो सपने हैं उसको भी हमको इसी तरह बनाना है। पहले हमको बनना है, फिर हमको वो करना है, इमेजिन देन फील, और उसके बाद आपको पाने की कोशिश करनी है। तो इट इज ऑलवेज उल्टा, फर्स्ट बी देन डू एंड देन हैव, ये सब है। If you want to lose weight, then give love by imagining and feeling yourself with the body you love, instead of imagining and feeling that you are overweight every single day. If you want to travel, then give love by imagining and feeling yourself traveling, instead of imagining every day that you don't have the money to travel. If you want to improve yourself in the sport, acting, in a sport, acting, singing, playing a musical instrument, hobby, or in your job, then give love for what you want to be by imagining and feeling whatever it is you would love to be. If you want a better marriage or a better relationship with anybody, then give love by imagining and feeling what it would be like to have that relationship. हाँ, आपको जो भी करना है, आपको कोई ट्रेवल करना है, स्पोर्ट्समैन बनना है, गीतकार बनना है, संगीतकार बनना है, आपको कोई डॉक्टर बनना है, अच्छा रिलेशन चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट, यू हैव टू स्टार्ट इमेजिनिंग, फीलिंग। तो जब तक फीलिंग नहीं आती है, वो वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होता है आपके बॉडी में। वाइब्रेशन समथिंग दैट विल कनेक्ट विद अदर्स। हम जो जी रहे हैं, हमारे आसपास पूरा एनवायरनमेंट जो दिखता नहीं है, इस तरह समुद्र में पानी होता है चारों तरफ, यहाँ पे एक एनवायरनमेंट है। जब तक आपकी फीलिंग और वाइब्रेशन बाहर नहीं निकलेंगे, उस एनवायरनमेंट में वेव्स नहीं बनेंगे। जो वेव्स जाके वापस आएंगे, जो आप दोगे वही वापस आएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट फीलिंग। सोचो और उसको फील करो, ताकि वाइब्रेशन जाए टू इन द यूनिवर्स, सो दैट यूनिवर्स अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट एंड इट विल गिव यू बैक। ओके, सो जो भी करना है उसके लिए आपको प्यार होना चाहिए, लव होना चाहिए, उसके लिए फीलिंग होनी चाहिए। Yeah. Faith is to Abhay believe. ji, Hirani ji, can I Magic. ask one question, please? Yes. Yeah. Yes. Now you see, imagining and feeling, you cannot stretch it to the limit. Actually, some action is required. So if you Yes. just go on imagining and all, it's understandable. Imagining, feeling, and love and all is quite understandable. But Right. stretching it to the limit, without putting action. Now, take for example, reducing the weight. So you need, to have proper inputs. You have to take, right kind of food. If you just go Yes. on imagining and if you go on eating, No. Yes, well, that's what I told you. आपको पहले being, doing हाँ and जी। then having, मतलब आपको काम तो करना ही पड़ेगा। एक्शन के बिना कुछ नहीं होगा, पर एक्शन के लिए Yeah. for the right action, right feeling, Right. नहीं तो एक्शन आती नहीं है। नहीं, बरोबर Absolutely जी। right. Very Yeah. good question. Very good question. Thank you. Yeah. Thank you for Yeah, that. thank you जी। हाँ, thanks. Yeah. Faith is to believe that which you do not yet see, and the reward of this faith is to see that which you believe. Saint Augustine of Hippo, 354 to 430. Theologian. ये क्या लिखते हैं? Faith is to believe. Theologian and bishop. Faith is to believe that which you do not yet see. जो आपको दिखता नहीं है, उसको believe करना, उसको faith बोलते हैं. And reward of this faith is to see
दैट विच यू बिलीव, उसका रिवॉर्ड क्या आएगा? जो आपने सोचा वो आपको दिखेगा। तो हमेशा जो आपको कुछ करना है, आपको लाइफ में जो बनना है, दैट यू कैनॉट सी नाउ, बट यू कैन बिलीव इन इट। मैं ये बनने वाला हूँ, मैं करूंगा, मेरे में क्षमता है, मुझ में ये ताकत है, मैं ये कर सकता हूँ। तो फेथ इज टू बिलीव व्हाट यू डोंट सी। जो दिखता है वो तो सब बिलीव करते हैं ना, तो वो फेथ को बोलते हैं, इसको बोलते फेथ। और जब आप फेथ करोगे तो आपको दिखेगा जो आपने सोचा था। यस, When you begin with when वर्किंग। you begin working with the creation process, you might want to start by attracting something unusual. When you specifically attract something unusual, you will be left in no doubt about your power when you receive it. when One you young when you begin working with the creation process, जब चालू करोगे, you will start attracting। जो चीज नहीं होती है, आपको नहीं समझ में आती है, वो आप अट्रैक्ट करोगे। तो when you specifically attract something unusual, you will be left in doubt about your power when you receive it। जब आपको माल मिलेगा, you will be क्या है, ऐसा पावर है हमारे में, you will be doubtful, that you will have a doubt about that। बट एक क्रिएशन प्रोसेस से आपको अनयूजुअल चीज जो आपने कभी सोची नहीं, वो आप पा सकते हो। तब बाद में आपको विश्वास आएगा अपने पावर में। यस। one young woman began by choosing to attract a specific flower, a white calachi lily. She imagined holding the flower in her hand, smelling the flower, and she felt having that calachi lily. 2 weeks later, she went to her friend's house for dinner, and there is in the centerpiece table was a bouquet of white calla lilies, the very flower and color she had imagined. She was excited to see the lilies, but she didn't say anything to her friend about her imagined flower. As she was walking out the door at the end of the evening, her friend's daughter spontaneously plucked one white calla lily from the vase and put it in her hand. एक छोटा एग्जाम्पल है कि कैसे उसने सोचा, वही उसको मिला उधर टेबल पे जब वो किसी घर पे गए, और अंत में उन्होंने वो फ्लावर उनके हाथ में दिया। ये ताकत है सोच की। यस। Imagination is the beginning of creation. You imagine what you desire. You will what you imagine, and at last create what you will. तो इमेजिन इज द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। जैसे आप कुछ भी सोचते हो, वो क्रिएशन की शुरुआत है। यू इमेजिन व्हाट यू डिजायर, यू इमेजिन व्हाट यू डिजायर, जो आपको चाहिए उसके लिए आप इमेजिन करोगे, सीधी बात है। एंड यू विल व्हाट यू इमेजिन, जो है वही सोचोगे आप, और लास्ट में क्या होगा, आप वही क्रिएट करोगे। एंड एट लास्ट यू क्रिएट व्हाट यू विल, जो आप इमेजिन करो उसको आप, जो बंडर्स हो तो दिखाए। गिव इट, रिसीव इट। Receive it. Remember that the law of attraction says whatever you give, you receive. If you think of law of attraction as a mirror, an echo, a boomerang, or a copying machine, it will help make you clear on what to imagine and feel. Law of attraction is like a mirror because a mirror reflects back exactly what is in front of it. The law of attraction is like an echo because whatever you give out is exactly the echo that comes back. Law of attraction is like a boomerang because whatever boomerang you throw is the exact same boomerang that comes back to you. The law of attraction is like a copying machine because whatever you give is reproduced exactly and you will receive back an exact copy. तो बोलते remember that law of attraction says whatever you give you receive। if you think of the law of attraction as a mirror, echo, a boomerang, तो वो परफेक्ट है, कॉपिंग मशीन। क्यों, जो आप दोगे वही पाओगे। चाहे वो मिरर में देखो तो सेम दिखेगा, इको भी सेम आएगा, बूमरैंग आप फेंको तो वापस आता है आपके पास, कॉपिंग मशीन सेम कॉपी करती है। तो इतना इनको फेथ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, और आपको भी यही रखना है। जैसे मैंने अभी चालू किया है कि आई हैव दैट फेथ इन माई, जो मैं दूंगा वो मुझे मिलेगा। जरूरी उसी आदमी से मिले या उसी जगह से मिले,
कहीं और से आएगा। मैं प्यार दूंगा तो मुझे प्यार मिलेगा। मैं पैसे दूंगा, सिर्फ पैसे उड़ाने नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट मतलब खर्चा करते रहो, वो नहीं बोलता हूँ। आप ढंग से खर्चा करोगे, डिसिप्लिन रखोगे पैसे का, तो आपको डिसिप्लिन से पैसा आएगा। पर आप देते हो, दान करते हो, दिल से करते हो, तो उतना आपको भगवान देता है, ऊपर से वापस आता है की ओर से। सो इट इज ऑल अबाउट व्हाट यू गिव यू विल रिसीव। तो देना भी सीखना चाहिए हमको, हमको देना भी सीखना चाहिए। और क्या होता है, आपके लिए 100 रुपया कुछ जगह पर, एक गरीब आदमी 100 रुपया बहुत बड़ी बात है। पर किसको दो? भीख मांगने वाले को नहीं, जो आदमी श्रम करता है। ये तो हम भिखारी बनाते हैं। हम क्या फुकट में देते ना, तो आदमी को भीख मांगने की आदत हो जाती है। यू शुड फाइंड गुड पीपल, जिसको जरूरत है उसको बराबर जगह पे आप जाके दो। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। Yes. यस, अभी A few years ago, I was in Paris for my work, and I was walking down a street when a woman brushed past me wearing one of the most beautiful skirts I had seen, intricately detailed in a Persian style. My reaction was love. What a beautiful skirt. हाँ, A few weeks इसका later, इसका एक है अबे भाई, इसका मजा क्या ना, मैं इन्होंने किसी एक औरत जा रही थी, इसको पास हो रही थी, धक्का मार के निकल गई आगे, और उसे स्कर्ट दिखा। तो व्हाट हैपेंड, देयर वाज लव इन हर, दिस नो, उसने जलन नहीं की। तो बहुत अच्छा लगा, उस पे प्यार है कि ऐसा चीज होनी चाहिए। सो देयर इज अ डिफरेंस। एक हम जलन से मांगते हैं कुछ चीज, और एक हम उसको प्यार आता है, आई लव दिस, मिल जाए तो भगवान की मेहरबानी। दोनों चीज बहुत फर्क है। यस। a few weeks later, I was happily driving to work in Melbourne, Australia, when I was forced to stop because another driver was trying to do an illegal U-turn at an intersection. As I looked at a store window where I had been forced to stop, I saw the exact same skirt I had seen on the woman in the street of Paris. I could not believe my eyes. When I got to work, I called the store and they told me they had received only one skirt from Europe, that style, and it was the skirt in the window. Of course, the skirt was my size. When I went to the store to purchase the skirt, it was reduced to half price, and the store attendant told me they had not ordered the skirt and that it had just appeared in their store accidentally. ये खराब बात होती कभी भी, उनको वो अच्छा लगा और वही उनको दिखा, and when she called, it was the only skirt that was by mistake. So this is the power. Yes, Yeah. right. The only thing I had done to bring that skirt to me was to love it. And from Paris to a suburban street in Australia, through circumstances and events, the exact same skirt was delivered. That is the magnetic power of love. This is love's law of attraction in operation. हाँ, ये एक मैग्नेटिक पावर है। इनका यही बोलना है कि जब दिल से आप मांगते हो, तो ऊपर वाला कैसे देता है। और शाहरुख खान का पिक्चर में एक था ना, तो मुझे बराबर डायलॉग याद नहीं आ रहा, उसमें ऐसे ही कुछ था कि जो हम दिल से चाहेंगे जिस चीज को, तो ऊपर वाला भी, सारी कायनात भी, जो आप शिद्दत से मांगोगे। हाँ, सारी कायनात। तो इट वाज अ ब्यूटीफुल, तो सेम चीज उन्होंने बोली है, आप दिल से मांगो, फीलिंग लाओ अच्छी, मतलब इट्स फीलिंग शुड बी प्योर, इसमें कोई जलन नहीं, कोई नफरत नहीं, इट्स प्योर फीलिंग और प्योर वाइब्रेशन। यस। Imagination. This world is but a canvas to our imaginations. Henry David Thoreau, 1817 to 1862, transcendentalist. ट्रांसेंडेंटलिस्ट ऑथर, ट्रांसेंडेंट मतलब तो कोई चीज उससे आगे जाना, तो वो टाइप के ऑथर है। हम लोग जो सोच के आगे जाते हैं। दिस वर्ल्ड इज बट अ कैनवास टू आवर विजन, वो कैनवास इस पे ड्रॉ करो इमेजेस। क्या ब्यूटीफुल बोला है। Yeah, it is beautiful. यस। Excellent quote. When you imagine anything positive that you want and love, you are harnessing the force of love. When you imagine something positive, something good, and you feel love for it, that is what you are giving, and that is what you will receive. If you can imagine it and feel it,
then you can receive it. But what you are imagining must come from love. हाँ, आप जो भी सोचते हो दिल से सोचना है, प्यार से सोचना है, इट शुड बी प्योर. Yeah. जो भी आप सोचोगे वो आप पाओगे. इट हैज टू बी पॉजिटिव. द फीलिंग शुड बी पॉजिटिव. अच्छी होनी चाहिए फीलिंग, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी भी अच्छी निकलती है. यस. Whatever you are imagining must not harm another person. एब्सोल्युटली. Imagining something that brings harm to another person comes not from love, but from a lack of love. And with certainty, any negativity, even imagined, will return back with an equal ferocity on the ferocity on the person who sent it. Whatever you give, you receive back. हाँ, तो आप दिल से सोचोगे, प्यार से आओ, अरे सोचोगे उसके बारे में और पाने की कोशिश करोगे तो आपको मिलेगा. पर जितना ही आप नफरत से सोचोगे तो वो गुड फीलिंग नहीं है. मतलब आप नेगेटिव हो तो उतनी जोर से वापस नेगेटिविटी आपके पास आएगी. मतलब आप जो चाहते हो आपका जो है वो भी चला जाएगा. जो थोड़ा बहुत है वो भी आपका मजा नहीं आएगा, आपको नहीं मिलेगा, आपका दूर हो जाएगा. वॉट एवर यू गिव यू विल रिसीव बैक. और आप माँ कहना एको जब करते हो ना, आप जब जोर से बोलते हो उससे डबल से जोर से आवाज आती है. तो कई बार इको बहुत जोर से आता है वापस. सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाट यू स्पीक. हम दिन भर जो बोलते हैं ना, अरे यार तकलीफ हो गई, मजा नहीं आ रहा है, क्या करेंगे, अरे अभी तो ये लफड़ा हो गया, ऑल दिस वर्ड्स, लफड़ा, तकलीफ, मुसीबत आ गई. ये वर्ड्स को हटाने हैं हमारे डिक्शनरी से, हमारी वोकेबुलरी से. हमको अच्छा सुना है, कितनी भी तकलीफ है बोलने का. इट इज अ चैलेंज एंड आई एम गोइंग टू मीट, आई विल रिजॉल्व इट. ऑलवेज बी रेडी टू रिजॉल्व. जब आप सोचते हो सॉल्यूशन के बारे में तो आपको सॉल्यूशन ही दिखते सॉल्यूशन. और जब आप सोचते हो कि नहीं होगा तो आपको सारे प्रॉब्लम्स बड़े दिखते हैं. तो आपको किस चीज को बड़ा करना है वही बोलिए. आपको सॉल्यूशन को बड़ा करना है, आपको हैप्पीनेस को बड़ा करना है, आपको गुड फीलिंग को बड़ा करना है, तो उसके बारे में बोलिए. चाहे कितना भी खराब सिचुएशन हो, बोलना तो आपके हाथ में ना. आप ये तो सोच सकते हो अच्छा होगा. अभी जो भी है उसको आप बताइए कि ये चैलेंजेस है मेरे साथ हैं और मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसको मार दूंगा, मैं अच्छा हो जाएगा. मेरा भगवान, आई एम अ सन ऑफ गॉड. मैं रोज बोलता हूँ आई एम सन ऑफ गॉड एंड गॉड वॉन्ट गिव समथिंग बैड टू मी. वो तकलीफ भी इतनी देगा जितनी आप रिजॉल्व कर सकते हो. फिर आपके मगज पे डिपेंड है, आपके दिमाग पे सब डिपेंड है. बोलते ना कि आपका नी खराब होता है, नी रिप्लेस होता है. हाथ में कोई तकलीफ हो तो वो कर सकते हो, हार्ट की सर्जरी हो सकती है, मगर ब्रेन का कोई सर्जरी नहीं है. उसको तो आपको सिखाना है, काउंसलिंग करना है. You have to counsel your brain. That is all that you can do. Brain is something you cannot repair with by teaching it also. Okay. Right. Yes. But Yes, Abhay. But I want to tell you something fantastic about the force of love and your imagination. The highest and best thing Best. you think is best thing you think is possible is nothing compared to what the force of love can give you. Love has no limits. If you want to be full of vitality and happiness with an incredible zest for life, Yes. the force of love can give you health and happiness at levels far beyond what you have seen. I am telling you this so that you can start to break the boundaries of your imagination and stop putting limits on your life. Push Yes. yourself imagination to the limits and imagine the best and highest that you possibly can of whatever it is that you want. कौन ये म्यूजिक क्या आ रहा है बीच में? अबे जरा अभी आगे लो, ऊपर लो ना, ऊपर. अबे भाई, एक सेकंड. हाँ. वो बोलते हैं मुझे आपको बताना है समथिंग अबाउट लव एंड योर इमेजिनेशन. बराबर. The highest and best thing you think is possibly nothing compared to that, to what the force of love can give you. The highest and best thing you think is possible, जो आप सोच सकते हो कि पॉसिबल है,
is nothing compared to what the force of love can give you. कि आप जो मतलब बड़ा से बड़ा सोच लो, उससे भी ज्यादा आपको लव दे सकता है, आपको पूरा वाइटलिटी से भर देगा, इंक्रेडिबल जेस्ट, कुछ करने की तमन्ना, जबरदस्त खुशियां, ये सब कहां से आ सकती है? फ्रॉम लव. देयर इज नो लिमिट टू लव. देयर शुड नॉट बी एनी बाउंड्री. आप इतना जबरदस्त सोचिए, जितना आप सोच सकते हो सोचिए, मगर प्यार से, उसमें प्यार भरिए, एंड सी एनीथिंग इज पॉसिबल इन लाइफ. Yes, Abhay, let's go ahead. The difference between someone who is struggling and someone who has a fabulous life comes down to one thing: love. Love. Those who have a great life imagine what they love and want, and they feel the love of what you are imagining more than others. What they are Because imagining more than other people. people who are struggling are unintentionally using their imagination for what they don't love and don't want, and are feeling the negativity of what they are imagining. It's such a simple thing, but it creates vast differences in people's life, and you can see the difference everywhere you look. We can have the difference between someone who is struggling and someone who has a fabulous life. और सब चीज क्या है? It comes to one thing, that is love. जो आदमी अच्छा सोचता है, अच्छे फीलिंग मिलता है, उसके काम इजी हो जाते हैं. हंसते हंसते करोगे ना, आपका काम इजी हो जाता है. और वही जो आदमी दुखी रहता है, गलत सोचता है, नेगेटिव सोचता है, डरता रहता है, डर से आदमी को क्या होता है कि वो काली छा जाती है, हम सामने पूरा ब्लैक हो जाता है. तो डर से आदमी पीछे जाता है और वो स्ट्रगल करता है, कुछ नहीं पाता है, हासिल नहीं कर पाता है. बट वही आदमी जो प्यार से काम करे, लव से करे, और अच्छे सोच में रहे, अच्छे फीलिंग में रहे, प्यार से काम करे, हंसते से काम करे, तो काम इजी होता है. तो दिस इज वास्ट डिफरेंस. The people who are struggling are unintentionally using their imagination for what they don't love and don't want, and are feeling the negativity of what you are imagining, what they are imagining. तो वो जो इमेजिंग है उसके लिए वो नेगेटिव सोच रहे हैं, वो प्यार से नहीं आ रहा है, वो लैक ऑफ लव से आ रहा है उनकी सोच. ये सर भाई, दैट्स व्हाई. The secret of the mastermind is found only in the use of imagination. The secret of mastermind is found. Sorry. Christian D. Larson. Christian D. Larson, 1874-1962, the thought author. The secret of the mastermind. No, mastermind है, उसका secret क्या है? Is only in use of image. इससे हम सोचते हैं, हम कैसे imaging करते हैं किस चीज को. Yes. History has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all human limitations. In every field of human endeavor, whether science, medicine, sports, the arts, or technology, the name of the people who imagine the impossible are engraved in our history. By breaking the limits of their imagination, they change the They world. change the world. History has proven that those who dare to imagine impossible, उन्होंने एक करके दिखाया. उन्होंने सारे लिमिट्स तोड़ दिए, सब लिमिट्स तोड़ दिए. मतलब जो नहीं सोचा था हो गया है. जैसे वो एक रनर था, उन्होंने कुछ पहले बोलते थे देयर वाज सम लिमिट, इतने सेकंड में इतने भाग सकते कुछ था. उन्होंने वो एक बार ब्रेक किया हिस्ट्री बाय रनिंग फास्टर देन व्हाट वाज टोल्ड बाय साइंटिस्ट एंड ऑल दिस पीपल, डॉक्टर्स, कि इससे ज्यादा भागो तो ये हो जाएगा, आपका हार्ट ये हो जाएगा एंड व्हाटएवर. तो उन्होंने उससे तेज भाग के एक रिकॉर्ड ब्रेक किया. उसके बाद कई लोगों ने रिकॉर्ड ब्रेक किया. तो एक जो आप सोचते हो और दिल से सोचते हो और करना चाहते हो होता है, और जो लिमिटेशन है उसको भी आप पार कर जाते हो. वो एक लिमिटेशन था, उसको उन्होंने पार कर दिया. तो ये साइंस हो, मेडिसिन हो, स्पोर्ट्स में कहीं भी हो, देयर आर लिमिट्स दैट इज ब्रोकन. और बहुत कुछ हुआ है लाइफ आज के वर्ल्ड में जो हमारी सोच के परे था और पूरे वर्ल्ड को चेंज कर लिया. एक आप एयरप्लेन देख लो, फ्लाइट जो पकड़ते, वो इतना बड़ा लोखंड का टुकड़ा हवा में उड़ रहा है. और मुझे रोज दिमाग, क्यों मैं रहता हूँ एयरपोर्ट के पास, मैं बार बार दिखता हूँ
होते हुए, तो इट इज रियली अमेजिंग। ये हो सकता है, किसी ने सोचा भी होगा, किसी ने सोचा होगा ये हो सकता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, इतनी दवाई बनी है बनी। हाउ इट हैपेंड? इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ इमेजिनेशन। किसी ने कुछ सोचा, कुछ करना चाहा। जैसे कोई बीमारी थी तो किसी ने सोचा ये बीमारी को मुझे हटाना ही है, तो उस पर उसने प्रयास किया दिल से, प्रेम से, और उन्होंने मात पाई। तो ये होता है, आपको इमेजिनेशन को बढ़ाना है, लिमिट के बाहर बढ़ाना है। भगवान से की दया से बहुत कुछ पॉसिबल है जो हमको मालूम नहीं है। ये वर्ल्ड में बोलते हैं ना, देयर आर समथिंग डॉट है दैट यू नो। Yes. एक डॉट के बराबर है यू नो दैट यू नो। उससे थोड़ा बड़ा है यू नो दैट यू डोंट। योर वास्ट पोर्शन ऑफ योर लाइफ इज यू डोंट नो दैट यू डोंट। हमको मालूम ही नहीं कि हमको नहीं मालूम। वो कहां से आता है? इमेजिनेशन से, कुछ सोचने से और करने से वो बन जाता है। ये सब है। Your entire life is what you have imagined it to be. Everything you have or don't have, every situation and circumstances of your life is what you have imagined it It to will be. be. The problem is that many people imagine the worst. They are turning the most wonderful tool against themselves. Instead of imagining the best, many people are in fear and imagine all the things that can go wrong. And as surely as they keep imagining and feeling those things, they happen. Whatever you give, you receive. Feel and imagine the best and the highest you can in every area of your life, because the best you can imagine is a piece of cake for the force of love. लव। अब होता क्या है, आप माँ करना कि आदमी, लगभग आदमी डर के मारे कोई गलत सोच लेता है। बट देयर आर पीपल हु आर ऑप्टिमिस्टिक। पॉजिटिव ज्यादा, मैं बोलूंगा ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत ही इजी और अच्छा है। आप गिर गए और लग गया तो आप रोते रोगे, अरे लग गया। एक वो होता है, एक होता है यू बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, लग गया तो ठीक है, हो जाएगा। Yes. आपको हाथ पे लगा है, टूटा नहीं है, हाथ टूट गया है तो भाई चलो ऑपरेशन हो रहा है। देयर आर सो मेनी फीलिंग्स दैट विल कम आउट। जब तक आप मरते नहीं हो, आप ये सोच सकते हो मैं जिंदा तो हूँ। Yes. माय वाइफ हैड एक्सीडेंट्स मेनी टाइम। 2-3 बार हो गया, हम दोनों को तकलीफ है पैर में। तो कहीं गिर गए, लग गया। आई वाज होपफुल। मतलब जो आदमी होता है साथ में, वो रोता है, करता है। मैं बोला चलो पहले लेके जाओ, हालांकि मेरे को तकलीफ है। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन आस्क माय फ्रेंड्स, चल ये कर वो कर। तो आई वाज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या है, लग गया ना, हो जाएगा। एंड शी इज फैंटास्टिक, एकदम फाइन है, कोई तकलीफ नहीं। 3-4 बार हुआ है उनका, पर हर एक बार उनका ऑपरेशन अच्छा हुआ है, फैंटास्टिक हुआ है। ये हमारी फीलिंग से आता है। हमको लगता है ऐसा थोड़ी होता है, पर ये होता है। आप सोच के तो देखिए, बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव, और सब कुछ अच्छा होएगा। मिरेकल्स हो जाएंगे लाइफ में, मिरेकल्स। आपके वर्डिंग चेंज कर लो, बस आप वोकेबुलरी बदल दो। ब्रिंग वाओ फीलिंग, Yeah. एकदम Wow. फैंटास्टिक, क्या मजा आ रहा है। और मैं बोलता हूँ छोटी छोटी बातों में आप वाह बोलना सीखिए। आप आदमी को धन्यवाद देना सीखिए, और देखो क्या मजा आता है लाइफ में। Yes. लाइफ विल बी वेरी डिफरेंट। मोहन जी, क्या होता है व्हेन यू ब्रिंग दिस टाइप ऑफ फीलिंग, आप Yes. हर एक छोटी बात में आपको किसी को धन्यवाद बोलते हो, तो न केवल आपको अच्छा लगता है, मगर वो सामने वाले को तो इतना अच्छा लगता है, he will do much more than what he was doing for you। एक सादा वॉचमैन है, वो Yeah. आप इसको एक स्माइल दे दो, Yes. उसका दिन बन जाता है, बन उसका जाता है। दिन बन जाता है। So नहीं, let's आपने change our vocabulary, yeah. Yes, I will. When my family had settled in the United States, we flew our 15-year-old dog, Cabby, to be with us. One night, not long after Cabby had arrived, he managed to get out of a small gap in the fence. Our home legs onto mountains, so it was far from an ideal situation. In the dark, we searched the streets and trail leading up to the mountains, but our dog was nowhere to be found. Nowhere to be found। आ गया ये तो As स्टोरी my है। daughter, as my daughter and I were And I searching, was negative feelings of anxious began to increased। increase. I knew we had to stop searching and change the way we were feeling inside immediately.
The negative feelings were telling us that we were imagining the worst, and we had to change the way we were feeling quickly and imagine the best. At that point, every possible outcome could still happen, and we had to choose the outcome of having Cappy safely home with us by imagining and feeling that he was home. एक है अभी भाई, अभी एक कुत्ता जो फेंस से बाहर निकल गया है, पीछे माउंटेन है और डार्क है, झाड़ी है, और आदमी को सोच तो आएगी अरे नहीं मिलेगा, क्या होगा, कहीं कुछ मर गया, क्या हो गया, फंस गया। तो इन्होंने सोचा कि ये सब फीलिंग लाने से हम इसको आगे रख लेंगे, लेट अस हैव अ राइट गुड फीलिंग, आ जाएगा, मिल जाएगा, होशियार है, जो भी है। तो ये इन्होंने किया है। तो वो जो फीलिंग ऑफ एंग्विश और निगेटिविटी, उसको परे करके उन्होंने अच्छा सोचना शुरू किया, जबकि ऐसी सिचुएशन थी जब आदमी अच्छा सोच नहीं पाएगा। दे स्टार्टेड थिंकिंग इन अ गुड वे कि केबी वापस आ जाएगा और हमारे साथ ही है। तो फीलिंग ऑफ लव उन्होंने दिया। ये सब है। We We returned home. returned home and we pretended our dog was with us. We put food in his bowl as though he were. We imagined hearing the bell around Cabby's neck as he walked down our hallway. We talked to him and called out his name as though he were there. There. My daughter went to bed imagining that her best friend of 15 years would keep sleeping next to her bed as हाँ. he always did. नहीं, तो जो सारी सोच थी, जो था उनका पहले जैसे था, तो सब सोच उन्होंने लाई कि चल रहा है, उसकी बेल सुन रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, नहीं है तो भी वो खाना रख रहे हैं उसमें। तो ये फीलिंग लाने का तरीका है, हाउ टू ब्रिंग गुड फीलिंग। यस। Early the next morning, we discovered a notice on a street at the foot of the mountain saying that someone had found a little dog. It was Cabby, just as we had imagined our dog return home safely to us. अभी No इसमें matter- कैच है, अभी इसमें कैच है। अब इन्होंने अच्छा सोचा और उन्होंने भावना रखी कि केबी वापस आ जाए, बराबर। तब जाके इन्होंने वो नोटिस भी देखी। आदमी जो ये सोचता था कि ये तो चला गया, कुत्ता तो मर गया, अभी तो है ही नहीं, तो शायद वो नोटिस भी नहीं दिखता था। वो नोटिस नहीं दिखता था तो वो मिलता ही नहीं था उनको वापस। तो ये फर्क पड़ता है। व्हेन यू आर पॉजिटिव तो आप हर चीज में ढूंढते हो उसको, तो मिलता है। ये सब है। लेट्स गो। No matter what challenging situation you may find yourself in, imagine the best outcome and feel it. When you Yes. do, you will change the circumstances and you will change the situation into what you want. Yes. तो नो मैटर व्हाट चैलेंज, नहीं वो इतना ऊपर ले लो, आज इधर खत्म कर दे, कौन सा हो गए। नो मैटर व्हाट चैलेंजिंग सिचुएशन यू मे फाइंड योरसेल्फ इन, इमेजिन द बेस्ट आउटकम एंड फील इट। उसको सोचिए और फील करिए। व्हेन यू डू, यू विल चेंज द सर्कमस्टेंसेस एंड यू विल चेंज द सिचुएशन इनटू व्हाट यू वांट। आप जो सिचुएशन चाहते हो वो आ जाएगा, आप सोचिए बस। एनीवे, आज कितना पेज हुआ मेरे भाई? व्हाट इज पेज नंबर? नहीं दिखा जाए कल ये मार्क 94. 94। बस तो कल 95 से चालू करेंगे। सो लेट्स स्टॉप हियर टुडे, इट्स ऑलरेडी 7:15 और थोड़ा ज्यादा हो गया है। और किसी कुछ बोलना है? अभी बंद कर दो ये शेयरिंग। एनीबॉडी वांट टू से समथिंग? आपने बहुत, यस मनोज जी, मोहन जी। हाँ जी, ये जो है देखिए, ये जो राइटअप जो है बहुत देखिए बढ़िया है राइटअप पे। तो Yes. स्लाइड्स वगैरह आपने जो दिखाया, तो इमेजिन और फीलिंग करने के लिए देखिए रेपिटेशन का जरूरी है। तो देखिए इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, ये आप शेयर कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल टू शेयर विद अस? ये बुक शेयर करो आपको। क्या है देखिए, नो द रिपीटेशन, इमेजिनेशन। हाँ जी, और मैं book share करता परचेज द बुक इफ इट इज अवेलेबल। देखिए मार्केट में तो मैं परचेज कर लूंगा, आप थोड़ा मुझे हाँ, बता मार्केट है, दीजिए। पर मेरे पास पीडीएफ भी है, मैं आपको पीडीएफ भेज देता हूँ मोहन जी, हाँ जी, बाद में हाँ आप परचेज जी। कर लीजिए, मैं भेज हाँ देता जी, हूँ, अपने बहुत ग्रुप में बढ़िया। भेजता हूँ। हाँ जी, प्लीज। Okay, थैंक yes, यू, yes. थैंक यू वेरी मच अभय जी। वेरी नाइस रीडिंग। एंड हिरानी साहब बहुत अच्छा बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मुझे मोहन जी मैंने भी किसी सीखा है और मैं आगे ले जा रहा हूँ।
अरे नहीं जी, बहुत बढ़िया है. It should reach, कितने लोगों को it should reach, as many people as possible. बिकॉज मैं क्या हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, ये बुक है, उससे सीख रहा हूँ मैं भी. Right, जी. जितना मैं आज बात कर रहा हूँ उतना मैं खुद सीख रहा हूँ. अरे साहब, everybody is a learner in life. Till we go Yes, to the बस. grave, we should keep on learning. Keep on learning. बस. That's Thank all. you, thank you. Yeah, thank you. Thank you very Okay. much. Good day. Thank you. Thanks. Yeah. Thank you, everybody. Thank you. Okay, dear. Bye bye. Right, Bye. have a good Bye. day. Have a good day. Good day. Yeah. Yeah.